کراچی میں آج گرم ترین دن ہے اور اسی لیے لوگوں کا رش ساحل سمندر پر ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ہاکس بے کے ساحل پر اور میرا نام ہے شوکت سرخیل۔ آج یہاں کے مناظر دکھاؤں گا اور یہاں کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا کچھ موجود ہے، اور گرمیوں کا آغاز ہوتے ہی ہاکس بے کا رخ لوگ زیادہ تر کیوں کرتے ہیں، مطلب زیادہ رش ہاکس بے پر کیوں ہوتا ہے۔ ہاکس بے جانے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ گلبئی کی طرف سے آتا ہے، مگر اس کی سڑک کچھ ناہموار اور کچی سی محسوس ہوتی ہے، اس لیے ٹورز یا سیر کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے یہ نسبتاً کم موزوں راستہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا راستہ سپارکو روڈ ہے جو بلدیہ کی طرف سے آتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی راستہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ یہ نہ صرف مختصر ہے بلکہ اس کی سڑک بھی کافی حد تک بہتر اور ہموار ہے، جس کی وجہ سے سفر آسان اور کم وقت میں مکمل ہو جاتا ہے۔ ہاکس بے اپنی خوبصورت ساحلی پٹی کے باعث ایک مشہور تفریحی مقام ہے جہاں لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ یہاں آ کر اکثر سیاح مچھلی چرنگی کے قریب کچھ دیر رکتے ہیں اور پھر ساحل کی جانب رخ کرتے ہیں۔ چند ہی قدموں کے فاصلے پر پھیلا ہوا یہ ساحل اپنی اٹھتی گرتی نیلگوں لہروں کے ساتھ آپ کو یوں خوش آمدید کہتا ہے جیسے فطرت خود مسکرا کر آپ کا استقبال کر رہی ہو۔ کراچی کا ساحل سمندر ایک ایسی جگہ جہاں شہر کی تیز رفتار زندگی کچھ لمحوں کے لیے تھم سی جاتی ہے۔ جب آپ یہاں آتے ہیں تو سب سے پہلے ٹھنڈی ہوا آپ کا استقبال کرتی ہے جو چہرے کو چھوتے ہی ساری تھکن کو آہستہ آہستہ ختم کرنے لگتی ہے۔ سمندر کی لہریں مسلسل شور مچاتی ہوئی ساحل سے ٹکراتی ہیں اور یہ آواز کسی دھن کی طرح دل کو سکون دیتی ہے۔ یہاں ہر طرف زندگی ہی زندگی نظر آتی ہے۔ کہیں بچے ریت میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو کہیں دوستوں کے گروپ ہنسی مذاق میں مصروف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ خاموشی سے بیٹھ کر سمندر کو دیکھتے رہتے ہیں جیسے اپنے خیالات کو لہروں کے ساتھ بہا رہے ہوں۔ ساحل پر چلتے ہوئے ریت پاؤں میں دھس جاتے ہیں اور ہر قدم کے ساتھ ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ دور تک پھیلا ہوا سمندر انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا کتنی وسیع ہے اور ہماری پریشانیاں کتنی چھوٹی۔ یہ جگہ صرف گھومنے پھرنے کے لیے نہیں بلکہ خود سے ملنے کے لیے بھی ہے۔ یہاں آ کر انسان کچھ دیر کے لیے اپنے مسائل کو بھول جاتا ہے اور دل ہلکا سا محسوس کرتا ہے۔ کراچی کا ساحل نہ صرف خوبصورتی کی علامت ہے بلکہ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر کوئی اپنے انداز میں سکون تلاش کر لیتا ہے، چاہے آپ دوستوں کے ساتھ آئیں، فیملی کے ساتھ یا اکیلے۔ یہ جگہ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی واپس بھیجتی ہے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سمندر صرف پانی نہیں ہوتا، یہ ایک احساس ہے، ایک سکون ہے اور ایک ایسی دنیا ہے جہاں جا کر انسان خود کو پھر سے پا لیتا ہے۔
कराची के साहिली इलाकों में हॉक्सवे एक नहायत खूबसूरत और पुरसकून मकाम के तौर पर जाना जाता है। शहर की हलचल और शोर से दूर ये साहिल फितरत के करीब ले जाने वाला एक बेहतरीन मकाम है। यहाँ की सुनहरी रेत, नीला पानी और ठंडी समंदरी हवा इंसान के दिलो दिमाग को सुकून फराहम करती है। हॉक्सवे की तारीख़ बरतानवी दौर से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस साहिल का नाम एक बरतानवी अफसर हॉक्स के नाम पर रखा गया जो इस इलाके में रिहाइश पजीर थे। वक्त के साथ साथ ये जगह कराची के लोगों के लिए एक मशहूर तफरीही मकाम बन गई, जहां लोग अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ खुशगवार वक्त गुजारने आते हैं। ये साहिल अपनी कुदरती अहमियत के बायस भी ख़ास मकाम रखता है। यहाँ नायाब समंदरी कछुए आकर अंडे देते हैं, जिसकी वजह से ये इलाका माहौलियाती लिहाज से नहायत अहम समझा जाता है। मुख्तलिफ़ तंजीमें इन कछुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हैं ताकि ये कुदरती हुस्न को बरकरार रखें। हॉक्सवे पर लोग मुख्तलिफ़ सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कोई साहिल पर चहल कदमी करता है, कोई समंदर की लहरों से खेलता है। हॉक्सवे सिर्फ एक तफरीही मकाम नहीं बल्कि एक ऐसा साहिल है जहां इंसान सुकून, खूबसूरती और कुदरत के हसीन नज़ारों को एक साथ महसूस कर सकता है। यही वजह है कि ये जगह कराची के लोगों के दिलों के बहुत ज़्यादा करीब है। सूरज जब आस्ते आस्ते ढलने लगता है तो आसमान के रंग बदलने लगते हैं। नारंगी, सुनहरी और हल्के नीले रंग मिलकर एक खूबसूरत मंज़र पेश करते हैं जो दिल में उतर जाता है। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान ख़ुद को कुदरत के करीब महसूस कर रहा होता है। हॉक्सवे वाली तरफ ज़्यादा अच्छा वक्त जो है वो आने का है। दोपहर में आप आएँ, 11-12 बजे घर से निकलें और यहाँ पर पहुँच जाएँ। 1-2 बजे तक लंच वंच करें, साथ लेके आएँ, पानी वगैरह के कूलर भी साथ लेके आए। यहाँ से मिल तो जाता है कुछ खाने पीने का सामान, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वैसे तो आइसक्रीम वाले भी यहाँ पर हैं, भुट्टे वाले भी हैं, तो लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है, पिकनिक का मज़ा भी तभी आता है कि आप बेशक छोटी फैमिली क्यों ना हो, घर से बना के कुछ भी बना के ले आएँ और मगरिब से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले यहाँ से निकल जाएँ, क्योंकि बीच में कुछ रास्ते हैं वो सुनसान है। सुनना वैसे तो सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, लेकिन पंचर हो जाती, गाड़ी ख़राब हो जाती, तो फिर उसमें थोड़े सा मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो वैसे तो साफ़ सुथरा रास्ता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मगरिब होते ही यहाँ से वैसे भी लोग जाना शुरू कर देते हैं। जिनके पास बड़ी गाड़ी होती है, ज़्यादा फैमिली वाले होते हैं, तो वो रात देर से भी यहाँ तक रुके रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मगरिब से पहले लोग यहाँ से घर के लिए रवाना हो जाते हैं और ये बसें भर भर के आई हुई है, कहीं से आई हुई है, अभी रवाना के लिए तैयार है, क्योंकि मगरिब में अभी तकरीबन आधा घंटे के करीब रह गए। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि सबसे ज़्यादा लोग हॉक्सवे में क्यों आते हैं, उसकी वजह ये कि औरंगी, बल्दिया, हबचौकी और शेर शाह यहाँ के जो करीब करीब के एरिया हैं, क्योंकि यहीं से रास्ता आता है माजबोर्ड सुपार्क वाला रोड। तो सबसे पहले जो पड़ाव आता है वो हॉक्सवे का आता है, मछली चुरंगी के बिल्कुल करीब। इससे आगे मुबारक विलेज है, काफ़ी आगे है, फिर सुनहरा बीच है और दीगर जो साहिल समंदर की पट्टी है वो इससे काफ़ी दूर दूर है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो हॉक्सवे का आता है। तो ज़्यादा दूर जो लोग नहीं जाना चाहते, करीब के एरिया वाले लोग, तो वो यहाँ पर पड़ाव करते हैं, स्टे करते हैं और इन्जॉय करके वापस चले जाते हैं। तो मैं अभी पानी से निकला हूँ, बाल मेरे देख रहे होंगे, कपड़े मेरे गीले हैं, तो आप भी आएँ, इन्जॉय करें। जब हम लोग निकले थे घर से तो उस वक्त हीट व्यू का बहुत ज़्यादा बता रहे थे कि बहुत लहरें भी आ रही थी, गर्म हवा की लहरें, लेकिन साहिल समंदर की ठंडी हवाएं और अब भी हवा चल रही, तो मज़ा आ रहा है। लग नहीं रहा कि आज एक गर्म तरीन दिन है। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करें आप भी सी साइड का, क्योंकि कराची में इससे ज़्यादा अच्छी जगह कोई है ही नहीं। चाहे क्लिफ्टन वाला सी साइड हो या दो दरिया की तरफ हो या हॉक्सवे हो, मनौड़ा हो, केमाड़ी हो, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी साहिल पे जाके एंजॉय करें, फैमिली को टाइम दें। तो अच्छे दिन हैं और वैसे भी अब बच्चों के पेपर हो चुके हैं, तो एक अच्छा टाइम आप पास कर सकते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।